So today we have courtship contest. So I am solving the problem of courtship contest. So 1.5 hours remains from here. So we will first solve the question on ultimate fencing. So I am reading the problem statement we have. So the problem statement is: you have currently come into a position of a rather nice piece of land. You have recently come into possession of a rather nice piece of land on which you do like to build a house. Okay. Unfortunately, one side of this land borders a forest, and you really don't want any dangerous animal showing up at your doorstep. अच्छा, unfortunately one side of this land borders a forest. अच्छा, इस ज़मीन के एक हिस्से एक साइड में जंगल है, एंड यू रियली डोंट वांट एनी डेंजरस एनिमल्स शोइंग अप एट योर डोर स्टेप. अच्छा, आप नहीं चाहते कि आपके दरवाजे के डोर स्टेप पे, दरवाजे पे जो सीढ़ी है उस पर कोई एनिमल आपको दिखे, कोई जानवर आपको दिखे. नेचुरली यू डिसाइड टू बिल्ड अ फेंस टू कीप देम आउट. नेचुरल बात है कि यू विल ट्राई टू बिल्ड अ फेंस सो दैट यू कैन कीप देम आउट. So building a fence requires you to place fence posts first. Okay. So building a fence requires you to place fence posts first. अच्छा, फेंस बनाने के लिए फेंस पोस्ट आपको चाहिए. रिक्वायर प्लेस करना पड़ेगा आपको, जगह जगह पे फेंस पोस्ट डालना पड़ेगा. ओके ओके. द बॉर्डर्स कैन बी थॉट ऑफ एज ए सेगमेंट ऑफ लेंथ m ऑन द एक्स एक्सिस. अच्छा, so you can consider the border can be thought as a segment of length m on the x-axis. x बराबर 0 to x बराबर m. Initially there are posts only at those two end points. तो initially there are posts only at these two end points. अच्छा, इनिशियली दो पोस्ट है, एक x बराबर 0 पे है, x बराबर m पे है. ठीक है. सो यू विल, मतलब पोस्ट मीन्स जब भी आप फेंसिंग करते हैं तो किसी न किसी चीज़ पे आप जो है कोई न कोई यू विल ट्राई टू बाइंड सम वायर ऑन समथिंग. हाँ, सो दैट इज कॉल्ड पोस्ट. So the borders can be thought of as a segment of length m on the x-axis and its end point at x equal to 0 and x equal to m. Initially there are posts only at these two end points. Okay, very good. So now you will place n posts at distinct point along the border. Okay, one at a time. The ith of them will be placed at x equal to ai. After each post is placed, you do like to know what the longest empty segment, that is a segment without any post, along the border. अच्छा, so you will place n posts at distinct point along this border, one at a time. The ith of them will be placed at x equal to ai. After each post is placed, you do like to know what is the longest empty segment, that is a segment without any post. So after placing n posts at distinct points along the border, let's say ith of them will be placed at a point x equal to ai. So there will be some segments which is longest, that is there is no post between those two points. So you want to find some longest range over the x equal to 0 to x equal to m such that there is no post in that range. Okay, longest empty segment. So input, so we are going to get the first line of it will contain an integer t denoting the number of test cases. What's the question? तो ठीक है. So you will get number of test cases n is less than m. अच्छा, n हमेशा m से छोटा होगा एंड m जो है 2 से 10 की पावर 9 के बीच में होगा, और ai is less than m, so all ai are distinct. So the sum of n across all test cases won't exceed 2 into 10 की पावर 5. तो ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया कि आपको दे दिया गया है कि पहले तो ये दे दिया गया कि 0 से m के बीच में है, एक बॉर्डर 0 पे है, एक m पे है. ठीक है, ये बात दे दिया गया आपको. ठीक है, और बोल दिया गया कि लॉन्गेस्ट सेगमेंट निकालो सच डेट उसके बीच में कोई भी पोस्ट नहीं हो.
तो आपको हर एक पोस्ट जो है ना, आपके पास जो एन पोस्ट है, देख लीजिए यहाँ पर 4 पोस्ट है जैसे इस टेस्ट केसेस में, तो 4 पोस्ट है, एक 4 पे है, एक 3 पे है, एक 2 पे है, एक पे है, वेरी सिंपल। तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, यू कैन सॉर्ट इट, आप सॉर्ट कर सकते हैं, और क्या, यू कैन सॉर्ट इट, आप सॉर्ट कर सकते हैं। और फिर चेक करना है कि लॉन्गेस्ट रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक का है। यहाँ पे जैसे 4 3 2 1, 4 आउटपुट दिया, क्या बोल रहा है ये। अच्छा, आउटपुट क्या करना है, फॉर ईच टेस्ट केसेस आउटपुट एन स्पेस सेपरेटेड इंटीजर ऑन ए न्यू लाइन। अच्छा, द ith of them to denote the length of the longest empty segment after the ith post। अच्छा, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एम्प्टी सेगमेंट आपको बताना है आफ्टर द ith पोस्ट, आफ्टर द ith पोस्ट हैव बीन प्लेस्ड। अच्छा, जब आप ith पोस्ट को प्लेस कर देंगे तो लॉन्गेस्ट रेंज, तो मतलब सवाल कुछ ऐसा है, मतलब इतना सिंपल नहीं है, सिंपल ये है बात, ये रहा। देखिए क्वेश्चन कैसे, मैं व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ, व्हाइट बोर्ड खोलता हूँ, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है, थोड़ा सा क्विक रहेंगे हम। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको बारी बारी से दिया जाएगा, क्वेरी मिल रहा है आपको कि अभी जो है ith पोस्ट को प्लेस करो, एक पोस्ट बना दो इस जगह पे, इस कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। एक पोस्ट तो 0 पे है, एक पोस्ट पहले से m कोऑर्डिनेट पे बना दिया है, और आपको पहला क्वेरी मिलेगा किसी xi पे जाओ, यहाँ पर एक पोस्ट बनाओ, और इसके बाद आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सेगमेंट का लेंथ क्या है, ठीक है। लॉन्गेस्ट एम्प्टी सेगमेंट का लेंथ क्या है जिसके बीच में कोई पोस्ट नहीं हो, ठीक है, ये पूछेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेरी देगा, फिर बोलेगा कि बताओ, फिर तीसरा देगा, फिर बोलेगा कि बताओ लॉन्गेस्ट सेगमेंट किस रेंज में है, मतलब कितना लेंथ होगा लॉन्गेस्ट एम्प्टी सेगमेंट का। तो हर बार यहाँ पर प्लेस कर दिया और आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर प्लेस कर दिया और आपसे पूछ रहा है, तो इस तरह से आपसे पूछा जा रहा है चीज़ को, वेरी सिंपल। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, हाउ वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। हाँ, हम इस प्रॉब्लम को ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए, हाँ ऐसा कर सकते हैं, हम एक सेट रख लें, एक सेट रख लें हम, ठीक है। और हम सेट में हमको जब भी हम 0 और m सेट में पहले से इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और जब पहला क्वेरी आया तो हम देखेंगे कि इसका इससे जस्ट बड़ा क्या है, ठीक है, और इससे जस्ट छोटा क्या है जो इसमें है, इससे जस्ट छोटा और इससे जस्ट बड़ा खोजना है हमको, यही खोजना है। तो इससे जस्ट छोटा किसी खोजिएगा कि इससे जस्ट छोटा कौन सा एलिमेंट है, इससे जस्ट बड़ा वाला तो मिल जाएगा, इससे जस्ट छोटा वाला के लिए आप बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं और सेट में सर्च करते रहिएगा, बाइनरी सर्च लगा के आप खोज सकते हैं इससे जस्ट छोटा, इससे जस्ट बड़ा, ठीक है। बाइनरी सर्च लगा के खोजना है क्या, अच्छा, बाइनरी सर्च लगाएंगे और हम खोजेंगे इसका लोअर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड खोजते जाएंगे। लोअर बाउंड हम जब ये हमको ai के बराबर मिला, किसी का अपर बाउंड हमको ai के बराबर मिला, अपर बाउंड खोजते जाएंगे किसी हर एक एलिमेंट का। जब ये ai के बराबर मिला, अपर बाउंड जब ये मिला जो कि ai से बड़ा है, किसी भी एलिमेंट का जो ai से छोटा है, तो हम समझ जाएंगे कि यही है। तो हम बाइनरी सर्च लगा के इसको खोज सकते हैं, और इसका अपर बाउंड तो आराम से निकल जाएगा। इससे जस्ट छोटा वाला खोजने के लिए आपको बाइनरी सर्च और सर्चिंग करना पड़ेगा, log n में हो जाएगा, log n में हो जाएगा, ठीक है। ये काम कर सकते हैं हम। तो चलिए इसी काम को करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले बात, टेस्ट केस आपको कैसे मिलने वाला है ये मैं देख लूँ ज़रा। तो लेट्स सी हाउ द टेस्ट केस यू आर गोइंग टू गेट। तो टेस्ट केस आपको मिलेगा, पहले मिलेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर n मिलेगा, फिर m मिलेगा, फिर ai मिलेगा। तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस n m ai, ये नहीं मिलेगा, पहले आपको नंबर ऑफ टेस्ट केसेस मिलेगा, ठीक है। तो मैं एक इंट t बना लेता हूँ और नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इनपुट ले लेता हूँ, और हर एक टेस्ट केसेस के लिए मैं एक फंक्शन सॉल्व को कॉल कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक छोटा सा काम करेंगे कि एक वॉइड टाइप का फंक्शन बनाएंगे सॉल्व, ठीक है। और इसके अंदर में हमको क्या क्या लेना है, इंट n लेना है और m लेना है इनपुट, ठीक है। हमने n लिया इनपुट, हमने m लिया इनपुट, और लेने के बाद
हमको जो है कितना टेस्ट केस हमको मिलेगा कि नंबर ऑफ, हम एक सेट बना लेते हैं, ठीक है, सेट ऑफ इंट एस टी बना लेते हैं हम, ठीक है। और ठीक है, एस टी में हम इंसर्ट कर देते हैं एस टी डॉट इंसर्ट, एस टी डॉट इंसर्ट, ठीक है। एस टी में इंसर्ट कर देते हैं 0 और इंसर्ट कर देते हैं एस टी में हम m को, ठीक है। एस टी में 0 और m हमने इंसर्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद क्या करेंगे, आपको कितना एक्स्ट्रा वो जो अपना लोग एक मिनट रुके, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला गया है, हाँ, पोस्ट, हमको कितना पोस्ट बिल्ड करना है, एक्स्ट्रा n पोस्ट बिल्ड करना है। तो मैं हर एक पोस्ट को इनपुट लूँगा, इंट आई बराबर, मैं हर एक पोस्ट को इनपुट लूँगा तो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n और फिर आई प्लस प्लस। तो हर एक पोस्ट को मैंने इनपुट लूँगा। तो मान लीजिए पोस्ट किसी x कोऑर्डिनेट पे है, तो सी इन ऑफ x, सी इन ऑफ x निकालिए, ठीक है। अच्छा, सी इन ऑफ x निकालिएगा तो सबसे पहले अपर बाउंड ऑफ x निकालिए, ठीक है। तो ऑटो आई टी बराबर कुछ नहीं, मान लेते हैं इंट अपर बाउंड, अपर बाउंड निकालना है तो यूपी में इसको कर देता हूँ। तो एस टी डॉट अपर बाउंड, अपर बाउंड, एस टी का, एस टी में से अपर बाउंड निकालना है किसका, एक्स का निकालना है। तो एक्स का अपर बाउंड आराम से दे देगा। तो ये एक आइटरेटर देता है, तो इसको स्टार कर दूँ तो मैं ये सीधा सीधा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बाइनरी सर्च लगा के इससे जस्ट छोटा वाला एलिमेंट खोजेंगे जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो अभी तक के लिए तो मान लीजिए हमारे पास जो लार्जेस्ट सेगमेंट का लेंथ है वो इंट एक्स, मतलब अभी तक के लिए जो हमारे पास लार्जेस्ट सेगमेंट का लेंथ है जो कि नॉन एम्प्टी है, वो है 0 से 1 से लेकर के, समझ रहे ना, 1 से लेकर के m-1 तक, जिसमें कोई उसमें पोस्ट नहीं है। 1 से लेकर के m-1 तक। तो 1 से लेकर 3 तक अगर निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं, 3 - 1, 1 2 3, इसका 3 लेंथ हुआ। 1 से लेकर 3 तक 3 लेंथ हुआ। तो 1 से लेकर के m-1 तक कितना लेंथ होगा, m-1 -1 +1, ठीक है। अपर बाउंड निकाल लिए। अब जो देखिए हमारा जो हाँ क्या कहते हैं, जो कुछ भी है, हम जो है हमारे x कोऑर्डिनेट है, हम x पे आए हैं, तो ठीक है, x के पीछे जस्ट पीछे कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो है, ठीक है। तो हम ये चीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी सर्च लगाते हैं। s बराबर 0 से लेकर के हमारा जो कुछ भी होगा, हमारा जो होगा जस्ट छोटा वाला एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है वो x-1 तक ही होगा, ठीक है। तो मैं इस पर बाइनरी सर्च लगाता हूँ, वाइल s इज लेस देन इक्वल टू e, और बाइनरी सर्च लगा के मैं क्या लिखता हूँ, इंट मिड बराबर s प्लस e माइनस s/2। तो जब ये मैंने बाइनरी सर्च लिखा तब अपने को चेक करना है कि मिड का अपर बाउंड अगर आप मान के चलिए एक बार के लिए यूपी के बराबर आ गया, मिड का अपर बाउंड अगर यूपी के बराबर आ गया तो यही वो एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपर बाउंड निकालते हैं, ठीक है। इसका मिड का अपर बाउंड निकालते हैं, लेट्स फाइंड द अपर बाउंड ऑफ मिड, ठीक है। तो मिड का अपर बाउंड में निकालते हैं। तो इंट UP1 इज इक्वल टू स्टार ST डॉट अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड निकालते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अपर बाउंड निकालते हैं, किसका निकालेंगे, मिड का निकालेंगे अपर बाउंड, ठीक है। अच्छा देखिए, इफ़ UP1 बराबर UP आ गया, यही मिड है जो जस्ट छोटा वाला है जो इसमें प्रेजेंट है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास जो है हमारे पास, हमको जो निकालना था, इंट पीछे वाला निकालना था ना, PICH, ये पीछे इसका नाम रखते हैं। तो पीछे बराबर कर देते हैं UP1, पीछे बराबर कर देते हैं, और पीछे बराबर हम कर देते हैं अपना UP1 नहीं मिड, और हम ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो इल्स केस में क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा बात नहीं है तो हमको सीधा सा अपने s को अपडेट करके मिड +1 पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इतना करने के बाद हमारा जो है बाइनरी सर्च काम कर जाएगा। तो अब हमको पता चल गया है कि एक हमारे पास आ गया है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x पर हम एक चीज़ बिल्ड कर चुके हैं, तो हम सेट में इंसर्ट कर देते हैं x को। भाई ये x पर एक पोस्ट बिल्ड हो चुका है इस टाइम पे, तो x पे एक पोस्ट बिल्ड हो चुका है, नो प्रॉब्लम टिल नाउ वी हैव। अच्छा ठीक है, और आपके पास PICHE एक इंटीजर है और UP एक इंटीजर है, इसके बीच में कितना लेंथ है यही अपने को फाइंड करना है। PICHE -1 मतलब पीछे से +1, तो आप अगर एक इंटीजर मैं बोलूँ
जो जिसको आप कहें स्टार्ट, ये आपका सेगमेंट जो है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कोई भी पोस्ट नहीं है, तो वो है पीछे +1। और फिर इसको अगर मैं कहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसको मैं E1 कहूँ, तो E1 क्या होगा, E1 वेरी सिंपल है कि अप -1, ऐसा लिख सकते हैं आप, ठीक है। इतना लिखने के बाद क्या होगा कि आपको सेगमेंट का लेंथ निकालना है। मान लीजिए इंट लेंथ, कि इस सेगमेंट का लेंथ कितना है, पीछे S1 से शुरू हो रहा है, E1 पे ख़त्म हो रहा है, तो E1 माइनस S1, E1 माइनस S1 +1, 2 से 3, 3 माइनस 2 +1। अच्छा, तो आपके पास जो ये आंसर है, आंसर बराबर लिखो मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा, वेरी सिंपल, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा क्या होगा बताइए, लेंथ, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा लेंथ। तो इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा बात है कि आप एक आंसर होगा, एक मान लीजिए वेक्टर ऑफ रिजल्ट बना रहे हैं, तो रिजल्ट में पुश बैक कर दीजिए किसको, आंसर को। तो इस तरह से अपना काम हो जाएगा। और इस काम को करने के बाद अपना जो रिजल्ट है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट मैंने बना रखा है, लेट से वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट बना लेते हैं यहाँ पे, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट ऐसा बना लेते हैं। तो ठीक है, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है, और सी आउट रेस ऑफ आई, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ पे एक और केस डालते हैं, इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू n-1, तो सी आउट स्पेस, तो जो है स्पेस आपको प्रिंट करना है, वेरी सिंपल। और इतना करने के बाद आपको सी आउट इंडल कर देना है, ठीक है। ये रहा हमारा सारा का सारा काम। तो आई थिंक इट शुड वर्क। तो देखते हैं रन करा के ये काम करता है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, सेट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, हर्ज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं हर्ज इंक्लूड बिट्स स्लाइस stdc++ तो काम करेगा, काम करना चाहिए, इसको समझे। 4 4 4 4 4 सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ये कैसे समझे कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड भाई। 4 4 क्या दे दिया भाई, ये गलत दे दिया। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है, सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल सा दिक्कत है। इसमें दिक्कत ये है सॉल्यूशन में कि आपके पास आंसर निकला है, तो पहले से मैं क्या करता हूँ, इसको रेस को मैं -1, इसको मैं इनिशियली अभी जो है ना, इसको मैं -1 करता हूँ, ठीक है। और नहीं नहीं, इसको मैं ऐसा करता हूँ कि आंसर बराबर, सही बात है कि m-1 से शुरू हुआ और 1 पे ख़त्म हुआ और +1, ये लेंथ है। और इसका स्टार्ट क्या है, सोचिए, ये इसका स्टार्ट और एंड क्या है। हाँ, मैक्सिमम हमको फाइंड करके रखना है। तो मान लीजिए इंट s, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, st से स्टार्ट होता है, st से नहीं, इसका लेफ़्ट लिमिट क्या है, लेफ़्ट है इसका 1, और इसका राइट क्या है बताइए, राइट है इसका m-1, यही है। तो देखिए, अब आप एक चीज़ फाइंड कीजिए कि अगर x इस रेंज में आता है तो ही फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ कीजिए, देखिए इफ़ x, लेकिन आप सोचिए कि ये रेंज में आता है, यार इसके आने से ही डिस्टरबेंस आया ना, ये बात रहा कि पहले 0 था, m-1 था, आपने बोला कि चलो ये l लेंथ का है, 0 से m-1 है, बहुत दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब ये आपने बोला कि इसको 0 से m-1 टूट गया, मान लीजिए 0 से, मतलब ऐसा टूट गया, x पे भी एक तो चीज़ आ गया, तो आपने बोला था कि 0 से m-1 पे था,
वो टूटा, इस तरह से हो गया। हाँ, इस तरह से हो गया भाई। क्या है यार, गड़बड़ा रहा है सॉल्यूशन। अच्छा, एक चीज़, एक बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि कुछ नहीं करते हैं, एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए ये सेट ऑफ बनाए हैं ना, सेट ऑफ इंट अपना लोग बनाए हैं, ठीक है। सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट बनाइए, सेट ऑफ वेक्टर ऑफ इंट बनाइए, ठीक है। और इसमें इंसर्ट कीजिए ना आप, कुछ नहीं, इसमें इंसर्ट करना है, एक करना है आपको। सोचिए कि वन से शुरू हो रहा है, इसको आप आंसर कह रहे हैं, ठीक है। एक बार के लिए आपने इसको आंसर कहा, ठीक है, कंट्रोल भी, इसको एक बार के लिए आपने आंसर कहा तो आंसर। लेकिन अभी जो सेगमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक है बताइए, वन, जीरो से शुरू होता है और एम तक है, यही है, ठीक है। एक बार के लिए जब आप निकालेंगे ना तो यहाँ पर आपके पास एक होगा पीछे और एक होगा यूपी, दो ठो चीज़ होगा, तो ठीक है, पीछे होगा और यूपी होगा। और इसका क्या लेंथ होगा, पीछे और यूपी का लेंथ होगा समथिंग लाइक, ये होगा लेंथ, पीछे और यूपी का कुछ लेंथ होगा, ठीक है, यही होगा इसका लेंथ। तो ये इसमें पहले से है तो इसको डिलीट करना पड़ेगा अपने को। तो सबसे पहले सेट में से इरेज करना पड़ेगा, एस टी डॉट इरेज, नहीं भाई, सेट में तो ये सेट तो बना ही रहना था, ठीक है। इसको एस टी वन कहिए, और एक बनाइए एस टी, सेट ऑफ इंट एस टी, उसको ऐसे ही रहने देना पड़ेगा, सेट ऑफ इंट एस टी, ठीक है। एक तो ऐसे ही रहने देना होगा। अब क्या करना पड़ेगा ना, एस टी वन में से इरेज करना पड़ेगा अपने को, ई आर ए एस ई, इरेज। क्या इरेज करना पड़ेगा सोचिए, कि लेंथ का चीज़ है जो कि स्टार्ट होता है पी आई सी एच ई से और जाता है कहाँ तक, यूपी तक, अब तक। इसको इरेज करो सेट में से। इरेज करने के साथ साथ सोचिए कि सेट में इंसर्ट भी करना है, इस एस टी वन में इंसर्ट क्या क्या करना है। इंसर्ट ये करना है कि ये सेगमेंट इरेज हो गए, क्या होगा कि एक पीछे से एक्स तक जाएगा और एक एक्स से यूपी तक जाएगा, यही जाएगा, एक एक्स से यूपी तक जाएगा, ठीक है। और फिर जब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, एक्स से एक यूपी तक जाएगा, अच्छा। ठीक है, तो एक एस टी वन में फिर से इंसर्ट कीजिए, डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एक डालिए लेन वन, लेन वन कॉमा, लेन वन कॉमा, ये शुरू होगा कहाँ से, पी आई सी एच ई से शुरू होगा और एक्स तक जाएगा, ठीक है। और एक होगा एस टी वन डॉट इंसर्ट, ये इसका लेंथ होगा मान लीजिए लेन टू, और ये शुरू होगा पी आई सी एच ई से, पी आई सी एच ई से नहीं, एक्स एक्स से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक, यूपी तक जाएगा, ठीक है। इसको हटाते हैं अपन एक बार के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटाते हैं अपना लोग, ठीक है। अब एक काम मैं और करता हूँ कि सिंपल सा काम करता हूँ, लेन वन और लेन टू निकालना है, ठीक है। देखिए, इंट लेन वन इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा काम करना है अपने को। सोचिए कि लेन वन कहाँ से शुरू हो रहा है, एक्स माइनस वन पे जाके ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। और शुरू हो रहा है पीछे प्लस वन से, पीछे प्लस वन से, पीछे तो घटेगा ही, ये भी घटेगा, और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये लेन वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इंट लेन टू अगर निकालना हो तो वो कितना आएगा, वो कहाँ तक जा रहा है, यूपी माइनस वन तक जा रहा है, अच्छा, यूपी माइनस वन तक जा रहा है, और शुरू कहाँ से हो रहा है, एक्स प्लस वन से, तो एक्स भी घटाइए, माइनस वन भी घटाइए, फिर प्लस वन कर दीजिए, वेरी सिंपल। तो इतना करने के बाद हमको एक वेरिएबल निकालना है, मान लीजिए इसको वैल कहते हैं, वैल कहते हैं। तो मैं एक ऑटो आई टी लिखता हूँ, ऑटो आई टी इज इक्वल टू एस टी वन डॉट इंड, डॉट इंड लिखता हूँ,
अच्छा, st1 डॉट इंट कर दिया, फिर it को मैं माइनस माइनस कर लेता हूँ। अच्छा, it ऑफ ज़ीरो, it ऑफ ज़ीरो, तो इंट वैल इक्वल टू it ऑफ ज़ीरो, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको काम करना चाहिए, ये सॉल्यूशन काम करेगा। सिंटैक्स एरर नहीं हुआ तो, नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा रुकिए, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, वेक्टर ऑफ इंट v1 इज इक्वल टू स्टार आई टी। इतना करने के बाद यहाँ पर v1 ऑफ ज़ीरो लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये काम करेगा। एक तीन 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 13 11, ये क्या है भाई, फिर से गलत दे दिया आउटपुट। इसको ऐसा आउटपुट तो नहीं देना चाहिए था भाई। क्या दे रहा है आउटपुट ये, एक तीन दे रहा है, जबकि देना क्या है, हाँ, st1 डॉट इंट सेट में सबसे बड़ा वाला ऊपर होता है क्या, 2 5 2 पे आपने लगाया, 2 से 3 0। अच्छा, इसको 3 देना था। आप ऐसा कीजिए कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, +2 कर दीजिए, जो भी आ रहा है ना उसमें +2 करिए। ये ठीक काम करेगा। 3 5 2 पे और 4 पे, 2 पे आप डाले हैं तो 3 आ जाए, 3 ठीक है भाई, 3 4 5। 2 पे आपने एक बिल्ड किया है, तो 0 1 2 3, और फिर इधर भी कितना होगा, फिर 4 पे भी आपने बिल्ड कर दिया, 3 4 5। क्या यार, हम्म, इतना चक्कर नहीं लेना है। ठीक है, तो सबको ऐसे ही कर देते हैं, x माइनस पी आई सी एच ई। ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं सब। और लेन कॉमा पीछे कॉमा एस टी वन डॉट इरेज, कॉमा अप, कॉमा अप, लेन वन इक्वल टू x माइनस पी आई सी एच ई। ठीक है, और लेन टू इक्वल टू अप माइनस पी आई सी एच ई, अप माइनस पी आई सी एच ई। पीछे कॉमा एक्स, एक्स कॉमा अप, तो है, और यहाँ पर भी कर देते हैं। हाँ,
एम सीधा। st1 डॉट इंसर्ट, ठीक है, इसको हटाइए, ठीक है, इसको भी हटाइए भैया, यहाँ पर m डालिए, ठीक है, 0 से m, कोई दिक्कत नहीं है। पहले n लेना है इनपुट, फिर m लेना है। क्या दिया हुआ है इनपुट लेने का तरीका, ठीक है, पहले n फिर m। और फिर यहाँ पर लिख देना है st डॉट इंसर्ट m, 0 और m इसमें इंसर्ट कीजिए, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंटरेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सेट st1 और सेट बना हुआ है। अच्छा, अभी रन कराते हैं, देखिए। सात 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 कैसे आ गया, 27 27 27 कैसे आ गया। पहले n मिलेगा फिर m मिलेगा, ठीक है, पहले n फिर m। 25, 25 माइनस 0 25 होता है। 27 कैसे आ गया, सही बात है भाई, 27 कैसे आ गया। ठीक है, एस टी डॉट अपर बाउंड मिड यूपी1, यूपी1 बराबर अप अगर आ गया, ठीक है, 0 से x माइनस 1 में। क्या भाई, क्या है सब आउटपुट आ रहा है यार। 4 3 2 1 2 5, m का वैल्यू 5 है, 0 है, 2 पे पहले बिल्ड किए। 7 कैसे दे दिया यार, 7 कैसे आ गया। 5 माइनस 0 तो 5 ही होता है, m का वैल्यू 5 है। भाई st1 डॉट इंसर्ट m कॉमा 0 कॉमा m, x माइनस पीछे, पीछे बराबर मिट। अच्छा देखिए, पीछे बराबर मिनिमम ऑफ पीछे कॉमा मिड, पी आई सी ए जी, पीछे कॉमा मिड, ठीक है। और सर्चिंग रखिए अपना जारी, और ई को कर दीजिए मिड माइनस 1, इस केस में कर दीजिए, यही 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 गड़बड़ था। पीछे बराबर कर देते हैं अपन इंट, क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं। हाँ, जितना लेफ्ट में जाना है जब तक अपर बाउंड इतना का बराबर मिले। हाँ, अब काम करेगा, नाउ इट विल वर्क। बैंडी से गलत लिख दिए थे यार, कोई भी नहीं काम कर रहा।
x से जस्ट बड़ा कौन है? x तो होगा नहीं। तीन दो पाँच, ये क्या बात हुआ? 2 से 5 ये तो है। तो VC और VT ऑफ 0 क्या आ गया? ऐसा कैसे आ गया भाई? काम तो ठीक कर रहा है भाई। ST1 डॉट इंड। अच्छा एक चीज़ बताइए, 5 उसमें रह ही जा रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है सेट में से। लेन कॉमा पीछे कॉमा आप। पाँच ही आ जा रहा है। सो ये लाइन काम ही नहीं कर रहा है। हाउ टू डिलीट एलिमेंट फ्रॉम सेट। अच्छा ऐसे नहीं इरेज होता है, देखिए इरेज करने के लिए ना आपको ऐसा करना पड़ेगा कि कहाँ पे इरेज का स्टेटमेंट लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं ना, तो देखिए ऑटो IT2 इक्वल टू ST1 डॉट फाइंड, इसमें फाइंड लगाइए और ये लिखिए Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पर लिख दीजिए आप IT2। अरे यार हमको कंपाइलर उसी वाला यूज़ करना चाहिए था। अब ये काम करेगा।
अब काम करेगा ये देखिए। रन टाइम मिरर क्यों भाई? रन टाइम मिरर, ये रन टाइम मिरर दे रहा है, बताइए। ऑनलाइन जीडी पर रन कराते हैं यार। रन टाइम मिरर। तो यही जो है ना, यहीं पे दिक्कत आ रहा है और डेली इरेज नहीं हो रहा। हाउ टू इरेज एलिमेंट फ्रॉम सेट।
how to erase an element from a set of vector of int. यार इसको ऐसे रखना क्या ज़रूरी है? इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, तो ऐसे कर देते हैं मल्टी सेट ऑफ इंट st1 सेट ऑफ इंट st1, ठीक है ना। st1 डॉट इंसर्ट m करते हैं, ठीक है, और डिलीट करना है ना, ठीक है, ये है ना। st1 डॉट फाइंड लेन, लेन करते हैं st1 डॉट इरेज it2, ठीक है। डॉट लेन 1 इंसर्ट लेन 2 स्टार it, ठीक है। क्या प्रवीण जी रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? व्हाट्सएप दिए तुम लोग हैं? व्हाट्सएप देना क्या लास्ट मल्टी सेट ऑफ वथी में से लाइव है। मल्टी सेट समय से इरेज करने में दिक्कत होता है साला।
7 3 2 1 15 13 13 7। अरे यार, मल्टी सेट सब में इरेज करने में हमको दिक्कत होता है, इसी के चक्कर में इतना लेट हो गया। सॉल्यूशन एक ही बार में सोच लिए थे। गेस करें मेरा ग्लोबल रैंक कितना है? कितना? 5वां बनाना शुरू किया था तो 10 मिनट में चारों फेल दिए एकदम भयानक। Chef is shopping for ingredient for his restaurant and has with him a single discount coupon. बेटा कहाँ से? So I have little trouble in deleting elements from set of vector of int. That's why I took a lot to solve the question. It's 40 minute already remains. So 40 minute remains. So let's solve the question. Chef is shopping for ingredient for his restaurant and has with him a single discount coupon. So chef is shopping for ingredient for his restaurant and has with him a single discount coupon. Okay. So there are n ingredient chef would like to buy. तो शेफ इज शॉपिंग फॉर इंग्रेडिएंट फॉर हिज रेस्टोरेंट। तो पिछला इसके बाद वाला सवाल जो है ये है कि शेफ जो है शॉपिंग कर रहा है फॉर इंग्रेडिएंट फॉर हिज रेस्टोरेंट, इंग्रेडिएंट के लिए अपने रेस्टोरेंट में वो शॉपिंग कर रहा है। एंड हैज़ विथ हिम अ सिंगल डिस्काउंट कूपन, और उसके पास केवल एक ही डिस्काउंट कूपन है। देयर आर एन इंग्रेडिएंट शेफ वुड लाइक टू बाय। ठीक है, एन इंग्रेडिएंट है जो कि शेफ चाहता है खरीदना। द आइथ ऑफ देम हैज़ ए प्राइस ऑफ ए आई, जिसमें से आइथ इंग्रेडिएंट का जो प्राइस है वो ए आई है, बट शेफ कैन बाई इट एट ए प्राइस ऑफ बी आई इफ़ ही यूजेज द डिस्काउंट कूपन ऑन इट। अच्छा, देर आर एन इंग्रेडिएंट शेफ वुड लाइक टू बाय। ठीक है, एन चीज़ है जो कि शेफ खरीदना चाहता है। द आइथ ऑफ देम हैज़ ए प्राइस ऑफ ए आई, जिसमें से आईवा चीज़ का जो है प्राइस जो है ए आई है, बट शेफ कैन बाय इट एट ए प्राइस ऑफ बी आई। ठीक है, तो आइथ आइटम का जो प्राइस है ए आई है, लेकिन शेफ उसको खरीद सकता है बी आई में इफ़ ही यूजेज द डिस्काउंट कूपन ऑन इट, अगर वो डिस्काउंट कूपन यूज़ करता है इस पर। द स्टोर इज़ रनिंग ए स्पेशल कैंपेन। अच्छा, स्टोर जो है रन करा रहा है एक स्पेशल कैंपेन इफ़ ही यूजेज द डिस्काउंट कूपन ऑन इट। ठीक है, आइथ आइटम को खरीदने का दाम है ए आई, लेकिन अगर उस पर कूपन अप्लाई करता है वो तो उसको बी आई प्राइस में मिल जाता है शेफ को। ठीक है, द स्टोर इज़ रनिंग ए स्पेशल कैंपेन। स्टोर जो है जिस दुकान में वो खरीदने गया वो एक स्पेशल कैंपेन चला रहा है। एवरी कस्टमर इज़ गिवन सेवरल एंट्रीज इनटू अ रेफल। अच्छा, एवरी कस्टमर इज़ गिवन सेवरल एंट्रीज इनटू ए रेफल। In particular, a customer receives a number of entries equal to the greatest common divisor of the price of all the item they bought. A customer receives a number of entries equal to the GCD of the prices of all the item they bought. A customer receives a number of entries equal to the, in a particular, a customer receives a number of entries equal to, for example, if the price of the item are 9, 18, 13, the chef would receive GCD इतना 3 entries to the raffle. अच्छा, कितना एंट्री मिलेगा कोई भी कस्टमर को, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ द प्राइस ऑफ ऑल द आइटम दे बॉट। अच्छा, जो भी आइटम प्राइस जो लगा उसको खरीदने में, जो भी आइटम वो खरीदा कुछ कुछ प्राइस पे खरीदा होगा, तो सबका GCD निकाल दे तो वो एंट्रीज होगा। तो इतना नंबर ऑफ एंट्रीज कस्टमर को मिलता है। सेफ इज ओनली इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग हिज विनिंग चांसेस इन द रेफल बाय ऑब्टेनिंग एज मेनी एंट्रीज एज पॉसिबल। तो सेफ जो है इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो कैसे भी जो है क्या कहते हैं कि बढ़ा ले, वो कैसे भी जो है अपना मैक्सिमाइजिंग द विनिंग चांसेस इन द रेफल बाय ऑब्टेनिंग एज मेनी एंट्रीज एज पॉसिबल। तो अपने विनिंग चांसेस को वो बढ़ा ले, जो ज़्यादा एंट्रीज पाएगा वो जीतेगा। तो बहुत सारा शेफ गया है खरीदने के लिए, तो जो इसको ज़्यादा एंट्री मिलेगा वही जीतेगा। तो अपने जो है विनिंग चांसेस को जो है मैक्सिमाइज़ करना चाहता है। तो कुल मिला के वो चाहता है कि वो अपना
एंट्रीज मैक्सिमाइज करें। सो इफ़ ही कैन यूज हिज डिस्काउंट कूपन ऑन एट मोस्ट वन आइटम, अगर वो किसी एक आइटम पर ही अपना डिस्काउंट कूपन लगा सकता है, किसी एक आइटम पर ही वो डिस्काउंट पा सकता है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज ही कैन ऑब्टेन। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपको जीसीडी निकालना है, ठीक है, किसी एक बीआई को ले सकते हैं और बाकी एआई को लेना है आपको, तो कैसे मैक्सिमाइज होगा आपका ये क्या कहते हैं जो कुछ भी है, वट एवर यू है, इसको मैक्सिमाइज कैसे कीजिएगा। तो मैक्सिमाइज करना है जीसीडी को, नहीं। अरे यार, काट दिए हम इसको। तो मैक्सिमाइज करना है जीसीडी को। हर बार आपको टेस्ट केसेस मिलेगा, उस टेस्ट केसेस में एन मिलेगा और बी आई ए आई मिलेगा। तो इनपुट कैसे है, इनपुट फॉर्मेट क्या है, सेकेंड ए वन मिलेगा, फिर ए एरे मिलेगा पहले, फिर बी एरे मिलेगा, एन मिलेगा, टी मिलेगा, एन मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, यही मिलेगा आपको, ऐसे मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, पहले मैं लिखता हूँ, इस सबको हटाते हैं, ठीक है, और मैं लिखता हूँ हज इंक्लूड बिट्स स्लाइस std++ .h, मैं इतना लिखता हूँ। और उसके बाद लिखता हूँ यूजिंग, उसके बाद मैं सिंपल सा एक चीज़ लिखता हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std, और इतना लिखने के बाद मैं लिखता हूँ इंट मेन लिखता हूँ। और ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमको पहले इनपुट मिलेगा, तो सी इन टी लिख देते हैं अपन, और टी लिखने के बाद मैं एक लूप चला देता हूँ टी टाइम्स के लिए, ओके। और इस लूप को चलाने के बाद क्या करते हैं कि एक सॉल्व फंक्शन को कॉल कर देते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल, सॉल्व फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, और इतना करने के बाद हमने रिटर्न 0 कर देना है, हम रिटर्न 0 कर दिए। अब एक काम करते हैं, हम एक वॉइड सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, और सॉल्व फंक्शन बनाने के बाद हम इंट एन लेंगे एक इनपुट, ठीक है, और उसके बाद हम क्या लेंगे, ए आई एरे एक बी आई एरे लेना है, वेक्टर ऑफ इंट कैपिटल ए, और इसका साइज भी एन होगा, और इन द सिमिलर मैनर वी हैव अनदर वेक्टर v and whose size also will be n, then we have a for loop for int I equal to 0 I less than n और i plus plus, और c in, ठीक है, कैपिटल ए आई, ठीक है, और इन द सिमिलर मैनर वी हैव अनदर for loop for int I equal to 0 I less than n और i plus plus, और हम इनपुट ले लेंगे कैपिटल बी आई, ठीक है, हमने इनपुट ले लिया ए आई एरे और बी आई एरे। इनपुट लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम जीसीडी कितना पा सकते हैं, ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, दो ठो बात है, हम एक डीपी टेबल बनाते हैं, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट, इसका नाम रखते हैं डीपी, और डीपी वो इसका साइज रखते हैं n, और वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, और ये रखते हैं 2, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अब देखिए, हम एक लूप चलाते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n और i प्लस प्लस, ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने टिक किया है कि नॉट टिक किया है कहीं पर, एक बार के लिए आपने टिक कर लिया है। तो चलिए, हम कहते हैं कि अगर i बराबर बराबर 0 है, तो आप ये सोचो कि मैं कह रहा हूँ डी पी ऑफ आई 0 इक्वल टू कैपिटल ए आई लिखो, और डी पी ऑफ आई 1 इक्वल टू कैपिटल बी ऑफ आई लिखो, ठीक है, इतना लिखो। लेकिन इल्स केस है, सोचो आपके पास क्या क्या चॉइसेस है। आप 0 का मतलब ये है कि आप बी आई लेना चाहते हो,
तो बी आई, अगर बी आई को आप कंसीडर करना चाहते हो तो पीछे कहीं पर आप बी आई नहीं लिए हो तभी आप बी आई को कंसीडर कर सकते हो। तो बी आई आप लेना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर डी पी ऑफ आई जीरो, यहाँ पर बी आई लेना चाहते हो। डी पी ऑफ आई वन का मतलब हुआ कि आप इसमें बी आई को कंसीडर करना चाहते हो। तो ये क्या होगा, जी सी डी ऑफ किसका, सोचो, कि डी पी ऑफ आई जीरो, मैं जीरो कर देता हूँ, वॉट एवर वी हैव जीरो। क्या ऐसा सोल्यूशन, क्या लिख रहे हैं हम यार। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा, तो आप चाह रहे हो कि आप इस समय बी आई पे, अगर यहाँ पर बी आई लो तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा काम करते हैं, वेरी सिंपल थिंग वी आर गोइंग टू डू, कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये फालतू है। हम जो है एक सिंपल सा प्रीफिक्स और सफिक्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं ना अपन, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है ठीक है ठीक है, एक हम बनाते हैं वेक्टर ऑफ इंट, अच्छा एक बनाते हैं प्रेफ बनाते हैं एन साइज का, और एक बनाते हैं सब बनाते हैं एन साइज का, ठीक है। और सब बना लिए हम, और देखिए प्रेफ ऑफ जीरो इक्वल टू कैपिटल ए ऑफ जीरो कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद ऐसे ही हम कर देते हैं सफ ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू कैपिटल बी ऑफ एन माइनस वन, ऐसा कर देते हैं। और इतना करने के बाद क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई इक्वल टू वन, एक चलाते हैं, और आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। और हम लिखते हैं प्रेफ ऑफ आई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा कुछ नहीं कैपिटल ए ऑफ आई, ठीक है। इतना सा काम करते हैं। और एक काम और करते हैं कि हम एक लूप चलाते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू एन माइनस टू आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई प्लस प्लस, वेरी सिंपल, ठीक है। हम लिखते हैं सफ ऑफ आई इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ सफ ऑफ आई प्लस वन कॉमा कैपिटल ए ऑफ आई। इतना करने के बाद हम एक काम करते हैं, किसी को नहीं लेना है, तो एक हम काम करते हैं, एक इंट आंसर बनाते हैं, आंसर बराबर लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ क्या चीज़, एक लिखते हैं प्रेफ ऑफ एन माइनस वन कॉमा जी सी डी ऑफ कैपिटल बी ऑफ एन माइनस वन कॉमा प्रेफ ऑफ एन माइनस टू, ठीक है, ये हो गया। और एक लिखते हैं सिमिलर मैनर में जी सी डी ऑफ सफ ऑफ वन कॉमा कैपिटल बी ऑफ जीरो, वेरी सिंपल, ठीक है। इतना करते हैं तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री इज गोइंग टू बी द वैल्यू। तो ये एक है हमारा आंसर। अब हम एक लूप चलाते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू वन आई लेस देन एन माइनस वन और फिर आई प्लस प्लस, और मस्त आंसर बराबर मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा जी सी डी ऑफ प्रेफ ऑफ आई माइनस वन कॉमा सफ ऑफ
i प्लस 1, ठीक है, f ऑफ i प्लस 1, और इसका फर्दर GCD ले लेंगे, GCD ऑफ इसका फर्दर GCD लेंगे हम लोग इससे कैपिटल B ऑफ i से. So this is the thing we are going to do. Okay, so after this our answer will consist of the largest value of GCD in tensor indel. Okay, very simple thing we have to do. Now if n equal to 1, after doing all these things pref and sub we have calculated. If n is equal to 1, so C ought maximum of capital A of 0 comma capital B of 0 and indel. So this is the thing we should do and return from there. So I think we have written the correct solution. So let's run the code. Let's see is it actually working or not. So Xterm, where I have mistaken, namespace, using namespace std. रन टाइम एरर लीजिए भैया, रन टाइम एरर दे दिया, इतना गंदा कोड लिख रहा है. पता लगाते हैं कि किस लाइन में गलती है, डिबग करते हैं. फिनिश्ड, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक. चलिए, इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई. इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? इसी लाइन में दिक्कत है. यहाँ देखिए, अभी ठीक है. चलिए, इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? चार 17 आना चाहिए यार, 10 कैसे आ गया? अरे यार, यहाँ पे a ऑफ n माइनस 1 होगा. चलिए, यही सॉल्यूशन, इसका करेक्ट सॉल्यूशन है. इसको अपन सबमिट करते हैं. तो यही अपना है, हाँ यही अपना है ये सवाल. तो ये काम कर गया है. चलिए, अपना लोग जो है अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं. सो सेफ इज फीलिंग थर्स्टी. सेफ जो है 30 प्यासा फील कर रहा है. एंड डिसाइडेड टू मेक हिमसेल्फ और डिसाइडेड टू मेक हिमसेल्फ समथिंग टू ड्रिंक. तो ही हैज़ n डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जूसेस विथ हिम. उसके पास n जूस है, n तरह का जूस है. देयर आर AI मिलीमीटर ऑफ द आइथ जूस. ठीक है, देयर आर AI मिलीमीटर
मिलीलीटर ऑफ द आइथ जूस। आइथ जूस कितना है? AI मिलीलीटर है। सेफ इज फीलिंग एडवेंचरस एंड डिसाइडेड टू मिक्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस टू फॉर्म अ सिंगल वन। तो सेफ जो है बहुत ही एडवेंचरस है एंड डिसाइडेड टू मिक्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस टू फॉर्म अ सिंगल वन। अच्छा, एंड डिसाइडेड टू मिक्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस टू फॉर्म अ सिंगल वन। तो ठीक है, दे हैव AI मिलीमीटर ऑफ आइथ जूस, सेफ इज फीलिंग एडवेंचरस एंड डिसाइडेड टू मिक्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूसेस टू फॉर्म अ सिंगल वन। Formally, safe will do following: choose any 2 distinct types of drink I and J, and then choose an integer x between 1 and AI and y between 1 and AJ, and mix xml of drink of I with yml of drink J। अच्छा, सो AI में से क्या किया, मतलब आइथ जूस AI लीटर है, उसमें से x लीटर चुन लिया, और जेथ जूस जो है AJ लीटर है, उसमें से y चुन लिया, और फिर वो मिक्स कर देता है x मिलीलीटर को y मिलीलीटर के साथ। ठीक है, सो हाउ मेनी डिफरेंट मिक्सेस कैन अवेलेबल फॉर सेफ टू क्रिएट आर अवेलेबल फॉर सेफ टू क्रिएट? नोट दैट 2 मिक्स्ड ड्रिंक आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ द बेस ड्रिंक यूज टू क्रिएट द मिक्सेस आर डिफरेंट। अच्छा, हाउ मेनी डिफरेंट मिक्सेस आर अवेलेबल फॉर सेफ टू क्रिएट? कितना जो है मिक्सेस पॉसिबल है, आर अवेलेबल टू क्रिएट। नोट दैट 2 मिक्स्ड ड्रिंक आर कंसिडर्ड डिफरेंट इफ द बेस ड्रिंक यूज टू क्रिएट द मिक्सेस आर डिफरेंट, दैट इज दे हैव डिफरेंट I and J, or the quantities of base drink used are different, that is they have different X and or Y। अच्छा, तो समझ रहे हैं ना कि या तो 2 ड्रिंक को कब हम डिफरेंट मानेंगे, या तो दोनों अलग अलग चीज़ का कम्बिनेशन हो। हाँ, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि एक्स और वाई का वैल्यू सेम ही जूस में, बहुत सारा एक्स वाई का वैल्यू चुन सकते हैं ना, फॉर ईच एक्स देयर कैन बी सम वाई, तो उसका वैल्यू अलग अलग हो। मतलब आप ए बी दोनों जूस को मिला करके बना रहे तीसरा जूस, तो हो सकता है आप एक में से एक्स चुने, दूसरा में से वाई चुने, तो अगर ये जो अमाउंट ले रहे हैं आप, इसको भी चेंज कीजिएगा ना, तो उसको दूसरा जूस माना जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिफरेंट जूस। तो क्या किया जाए, हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 10 की पावर 6 दिया हुआ है। अच्छा, n 1000 है, सम ऑफ n across all test cases won't exceed 1000, तो sum of n across all test cases does not exceed 10,000। तो आप जो है n स्क्वायर का सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, n स्क्वायर का सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं हर एक आइथ जूस के लिए। कितना हम लगा सकते हैं, n स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को निकालेंगे कैसे हम, हाउ कैन वी फाइंड दैट? तो बहुत ही सीधा सा बात है कि आपको इनपुट कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। पहले तो मिलेगा टेस्ट केसेस, फिर मिलेगा n, फिर A1 A2 A3 इस करके हर जूस का फिर अमाउंट मिलेगा, पहले T फिर n, फिर हर जूस का अमाउंट मिलेगा। इस तरह से आपको इनपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले इसको हटाता हूँ और लिखता हूँ हज इंक्लूड बिट्स स्लाइस std std बिट्स स्लाइस stdc++ डॉट h, इतना लिखता हूँ। और फिर लिखेंगे हम यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, std इतना लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे इंट मेन हमारे पास होगा, और मेन के अंदर में फिर हमारे पास नंबर ऑफ टेस्ट केसेस पहले होगा, तो हम इसको इनपुट ले लेंगे, और फिर हम उसके बाद एक फाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, फाइल t माइनस माइनस, देन वी हैव ए वाइल लूप फाइल t माइनस माइनस, और इसके अंदर में हम सॉल्व फंक्शन को कॉल करेंगे। So we will call a solve function, and then after that we will just return from there, return 0, that's it we will do। उसके बाद हम जो है हमारे पास एक void solve होगा, इसके अंदर में क्या करना है, एक मैं इंटीजर n इनपुट लूँगा। अच्छा, n इनपुट ले लिया मैंने, अब एक वेक्टर बना लेंगे हम n साइज़ का, वेक्टर ऑफ इंट v n साइज़ का बना लेंगे, और एक फॉर लूप चला के इसमें इनपुट ले लेंगे हर एक ड्रिंक का कितना लीटर है अमाउंट। तो i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, वेरी सिंपल, c इन कैपिटल A ऑफ i, ये हम करने वाले हैं। वेरी सिंपल थिंग वी आर गोइंग टू डू। इसके बाद क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। अच्छा, कितना पॉसिबल ड्रिंक है, कितना तरह का ड्रिंक पॉसिबल है, इसको मैं लॉन्ग आंसर कर देता हूँ, इसको 0 कर लेता हूँ। तो एक लूप चलाते हैं,
फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। और एक लूप और चलाते हैं, फॉर इंट जे इक्वल टू 0 जे लेस देन एन और फिर जे प्लस प्लस। जे इक्वल टू 1 नहीं, जे इक्वल टू आई प्लस 1, वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए आई जूस और जे जूस को मिलाइएगा तो आई का अमाउंट है आपको कैपिटल ए ऑफ आई, कितना लीटर है, और फिर जे का जो अमाउंट है वो कैपिटल ए ऑफ जे है। तो आप आई का कुछ चुनते हैं, ठीक है। आपके पास इसका एक लो, इसका एक लो, इसका मतलब ए आई गुने ए जे, यही तो होने वाला है आपका आंसर। तो आंसर प्लस इक्वल टू, इसको मैं क्यों ना लॉन्ग लॉन्ग कर दूँ, सो लेट्स मेक इट लॉन्ग लॉन्ग। तो आंसर प्लस इक्वल टू नथिंग बट ए ऑफ आई मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए ऑफ जे, यही तो होगा। 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, 3 तरीका है इसका लेने का, फिर उसका 4 तरीका है, 4 तिया 12 तरीका, इस तरीका से। तो सी ऑट आंसर क्विंटल, ठीक है। तो इस तरीका से हम इसको कर देंगे। ये क्या दिक्कत है भाई, सो वॉइड सॉल्व गलत लिखा है आपने। ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, अरे वी होगा ये वी है अपना, ए नहीं है, सही बात। सो यहाँ पर हमने ए में इनपुट ले लिया है, गलत बात, भी में लेना है हमको, लेकिन नाम भी रखें वेक्टर का। चलिए ये काम कर रहा है ये सॉल्यूशन, बड़ा सिंपल सवाल था, 2 फॉर लूप लगाना है और कुछ है खास नहीं है। देयर इज़ नथिंग मोर देन डैट। कंट्रोल ए, कंट्रोल भी, मस्त इसको सबमिट कीजिए, मिक्सिंग करना है यार। चलिए ये सबमिट हो गया, सो वी कैन मूव टू आवर फर्स्ट प्रॉब्लम देन। so we have only 2 problem left. Let's see how much minute we have left. So 14 minutes. So Seth is playing a certain video game that requires him to collect monster. Seth जो है एक certain video game play कर रहा है that require him to collect monster, जिसमें उसको that required him to collect monster and use them to fight against other monster, जो कि मांगता है कि जिस गेम में उसको मॉन्स्टर को कलेक्ट करना है और फिर उसका यूज़ करना है लड़ाई करने वक्त, ठीक है। सेप्स फेवरेट मॉन्स्टर हैज़ एन अटैक स्टैट ऑफ एक्स एंड इज फाइटिंग अगेंस्ट अनदर मॉन्स्टर हुज हेल्थ स्टेट इज एच। तो सेप फेवरेट मॉन्स्टर हैज़ एन अटैक स्टैट ऑफ एक्स, तो सेप का जो सबसे फेवरेट मॉन्स्टर है उसका अटैक स्टैट जो है एक्स है, एंड इज फाइटिंग अगेंस्ट अनदर मॉन्स्टर हुज हेल्थ स्टैट इज एच, और वो एक दूसरे मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है जिसका हेल्थ स्टैट क्या है, एच है, उसका हेल्थ स्टैट क्या है, एच है। द फाइट प्रोसीड्स इन टर्न, ईच टर्न सेप्स मॉन्स्टर डज एक्स डैमेज टू इट्स अपोनेंट, ठीक है, एंड इज फाइटिंग अगेंस्ट अनदर मॉन्स्टर हुज हेल्थ स्टैट इज एच। तो अटैक स्टैट एक्स है जो लड़ रहा है हेल्थ स्टैट एच वाला से, ठीक है। द फाइट प्रोसीड इन टर्न्स, ईच टर्न सेप्स मॉन्स्टर डज एक्स डैमेज टू इट्स अपोनेंट, हर बार जो है सेफ का जो मॉन्स्टर है वो एक्स डैमेज करेगा अपोनेंट का इन ईच टर्न। द फाइट प्रोसीड इन टर्न्स इन ईच टर्न, तो टर्न में चलता है लड़ाई कि पहले इसको मौका मिलता है लड़ाई में, पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को मौका मिलता है। तो हर एक टर्न में जो है सेफ का जो मॉन्स्टर है वो एक्स डैमेज करता है अपोनेंट को। हाउएवर सेफ्स मॉन्स्टर हैज़ द एबिलिटी स्लो स्टार्ट विच हाफ्स इट्स अटैक फॉर द फर्स्ट 5 टर्न्स। अच्छा, इसके पास एक क्षमता है सेफ के मॉन्स्टर के पास कि वो स्लो स्टार्ट करता है, विच हाफ्स इट्स अटैक फॉर द फर्स्ट 5 टर्न्स, जो कि इसके अटैक को आधा कर देता है पहले 5 टर्न में, ठीक है। दैट इज फॉर द फर्स्ट 5 टर्न्स द डैमेज डन टू द अपोनेंट इज x/2 एंड नॉट x, ठीक है। तो पहले 5 टर्न में जो है डैमेज जो है x/2 का करता है और तब x का करता है। तो हाउ मेनी टर्न्स विल सेफ मॉन्स्टर टेक टू डिफीट द अपोनेंट, that is do at least h damage to it. How many turns will safe monster take to defeat the opponent, तो कितना जो है that is do at least h damage to it, कि एटलीस्ट उसको h डैमेज करे, जैसे 4 है 7 है, तो भाई
एक्स, तो ये बोल रहा है 4 बार लगेगा, ठीक है। तो पहला 5 में तो क्या करेगा, 10 डैमेज करेगा, 4/2 डैमेज करेगा। तो यार इसमें क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टी है, तो एक इंट टी ले लो इनपुट, और ठीक है सी इन टी ले लो, और चला दो एक लूप वाइल टी माइनस माइनस, और कर दो सॉल्व फंक्शन को कॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक इंट सॉल्व बनाता हूँ, वॉइड सॉल्व बनाता हूँ, वॉइड सॉल्व बनाता हूँ। और इसमें क्या करना है, हमको लेना है एक x और एक h, ये दो इंटीजर हमको लेना है इनपुट x और h, और ये दोनों इनपुट लेके क्या कर देना है हमको, सिंपल सा बात, हमको निकालना है अच्छा अच्छा अच्छा, तो सोचिए ना, 5 टाइम्स x, पहले लिखिए इंट y इक्वल टू 5 टाइम्स x, 5 टाइम्स x/2, 5 बार स्लो स्टार्ट करता है भाई, 5 बार x/2 डैमेज करेगा, ठीक है, x/2 5 टाइम्स। तो देखिए अगर y ही ग्रेटर देन इक्वल टू h हो गया, तब तो सीधा सा बात है कि आप सीधा सा निकालिए इंट z इक्वल टू x/2। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, देखिए आप लिखिए इंट आंसर, आंसर बराबर कुछ नहीं h/z कीजिए, ठीक है। अगर देखिए h मॉडुलो z इज़ नॉट इक्वल टू 0, h मॉडुलो z इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब तो सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है कि आंसर को आप 1 से बढ़ा लीजिए और फिर सी आउट कर दीजिए आंसर इंडल, ठीक है। लेकिन ये बात नहीं है, इस केस में क्या कीजिए, आपका 5 तो हो गया, इंट आंसर बराबर 5 है, 5 अटैक तो आप कर दिए, और 5 अटैक में डैमेज क्या किए, y से डैमेज किए, तो h माइनस इक्वल टू हो गया y, ठीक है। अब आप मस्त एक काम कीजिए, ठीक है, आप निकालिए कि देखिए आंसर प्लस इक्वल टू कीजिए, आपका हेल्थ h है और हर बार x से डैमेज होता है, तो h/x कीजिए, ठीक है, h/x आप कर दिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव डन h/x। चलिए अब क्या है ना, अगर h मॉडुलो x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एक अटैक का और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी आउट, अब जाकर अपना आंसर साइड स्टोर हो जाएगा, हाँ ये ठीक है। अभी रन करा के देखें, काम करना चाहिए इसको, बड़ा ये सब ट्रिकी सवाल सब है। 471,503, चलिए काम कर रहा है, चलिए इसको सबमिट करते हैं। चलिए काम कर गया, चलिए पहला सवाल को करते हैं, कितना देर बाकी है अभी, चलिए हमारे पास अभी 8 मिनट बाकी है, तो आई एक्सपेक्ट दैट वी कैन डू द लास्ट प्रॉब्लम वी हैव ऑफ div 4। सेफ कंसीडर द नंबर 7 लक्की, सेफ कंसीडर करता है नंबर 7 को लक्की, एज ए रिजल्ट ही बिलीव्स दैट द 7th लेटर ही सीज ऑन ए डे, सेफ कंसीडर करता है द नंबर 7 लक्की, 7 नंबर को लक्की मानता है वो, एज ए रिजल्ट ही बिलीव्स दैट द 7th लेटर ही सीज ऑन ए डे इज हिज लक्की लेटर ऑफ द डे, एज ए रिजल्ट ही बिलीव्स दैट द 7th लेटर ही सीज ऑन ए डे इज हिज लक्की लेटर ऑफ द डे। अच्छा 7 को वो लक्की मानता है, इसीलिए ही बिलीव्स डैट कि 7th लेटर ही सीज ऑन ए डे, किसी दिन में वो 7वां लेटर जो देखेगा उसको वो लक्की लेटर मानेगा। सो यूर गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ लेंथ 10 डिनोटिंग द फर्स्ट 10 लेटर सेफ सॉ टूडे, सो व्हाट इज हिज लक्की लेटर। यार सी इन करना है एक स्ट्रिंग एस, कुछ नहीं यार, टेस्ट केसेस भी नहीं, एक स्ट्रिंग एस बनाना है अपने को, और इसको इनपुट ले लेना है, और इनपुट ले लेने के बाद क्या करना है, सी आउट कर देना है इसको, जैसे देखिए यहाँ पे डी है, तो छठा 6 इंडेक्स पे जो होगा वही तो होगा, एस ऑफ 6 इंडेक्स पे जो होगा वही लक्की लेटर होगा। चलिए देखिए काम कर रहा है, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं।
चलिए काम कर गया। तो जो है डिप 4 का जो है हमने सारा सवाल बना लिया है, तो यू कैन सी। तो थैंक यू।